A very good morning children. Welcome to the psychology classroom. कैसे हैं आप सभी बेटा? I hope you all are fine and everybody is fine at home. And I just hope you all are learning properly. We are studying the chapter learning in this video. Okay, so let's study about it. So basically the chapter which I am discussing with you is chapter 6 learning. So the chapter which we are discussing is chapter 6 learning, where we have discussed about different methods of learning. So in this chapter we have discussed the different paradigm, different methods of learning, okay, and like classical conditioning, operant conditioning, observational learning, cognitive learning. So children, let's discuss about the next method of learning. Okay. Date is 26/10/21, class 11C, subject psychology. ठीक है. So the things which are going to discuss, I am going to discuss with you today is about the next method of learning, chapter 6. Up to the cognitive learning we have discussed. So let's discuss next method, which is verbal learning. Okay. वर्बल लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन समथिंग विच यू डू इन द ओरल एंड रिटन फॉर्म. आई टोल्ड यू ऑल कि वर्बल का मतलब होता है ओरल और रिटन बोथ. तो समथिंग विच वी डन इन ओरल एंड रिटन फॉर्म. ओके. There are some methods of verbal learning which you all have to study in this one. Okay, methods of verbal learning. So let's discuss about the methods of verbal learning. Okay, some of the methods of verbal learning. So verbal learning is a learning which done place on the basis of oral and written form. Okay, just like you have learned so many kind of learning. Firstly, the classical conditioning, which is based on learning by association. Operant conditioning, which is based on learning by reinforcement. Okay. Observational learning is the learning which take place by observing other. Then next is cognitive learning, which is based on your mental process by your insight and on as well as on the basis of reinforcement. So verbal learning तो आप हमेशा करते आते हैं बचपन से. from your childhood you all are doing the verbal learning. You all are reciting the things verbally, oral and written both. Okay. Verbal learning के कुछ methods हैं. There are some methods of verbal learning. जैसे कि first है paired associate learning. Okay. Second is free recall, and third is serial learning. इसी में एक मैथड आता है सीरियल एंटिसिपेशन मैथड. सीरियल लर्निंग में आएगा सीरियल एंटिसिपेशन मैथड. The first kind of learning is paired associate.
मेनी ऑफ द टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि हम एसोसिएट करके लर्निंग करते हैं. वी एसोसिएट द वर्ड. बेसिकली पेयर एसोसिएट लर्निंग जो है एप्लीकेबल है. जैसे कोई नॉन मीनिंगफुल वर्ड है और मीनिंगफुल वर्ड से आपको एसोसिएट करना है, आप कर लोगे. इफ़ यू डू द एसोसिएशन ऑफ द नॉन मीनिंगफुल वर्ड विद द मीनिंगफुल वर्ड, यू कैन ईजिली रिकॉल द नॉन मीनिंगफुल वर्ड ऑल्सो. आपके लिए ईजी हो जाएगा नॉन मीनिंगफुल वर्ड को भी रिकॉल करने में. सेकेंड होता है फ्री रिकॉल. फ्री रिकॉल में रिकॉल इन एनी ऑर्डर. इसके लिए कोई सीक्वेंस नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में रिकॉल कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ वर्बल लर्निंग. लास्ट इज सीरियल लर्निंग. सीरियल लर्निंग यानी यू हैव टू रिकॉल द थिंग्स इन अ सीरियल ऑर्डर. सीरियली लर्न करना है. इसमें फर्स्ट वर्ड विल बी द रिकॉल ऑफ द अनदर. जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो रिकॉल होगा अनदर का, जिसे हम कहते हैं सीरियल एंटिसिपेशन मैथड. यानी एंटिसिपेट करते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं, कि इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं. जैसे बच्चों के साथ ये ज़्यादातर होता है, आपने महसूस किया होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ दे लर्न द अल्फ़ाबेट्स ABC, सो इफ दे फॉरवर्ड जैसे ABC, so if you ask to them what come after the C, so they are unable to say, but when they recall it A B C then D, so they are able to recall it D. तो ये होता है. ठीक है. सो वर्बल लर्निंग में 3 मेथड्स आते हैं: पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, फ्री रिकॉल और सीरियल लर्निंग. ठीक है. कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं. जस्ट लाइक एवरी मैथड there are, for every learning there are some determinant which determine it. Similarly here also there are some determinants of verbal learning. कुछ determinants हैं verbal learning के. क्या determinants हैं? So उसे भी हम लोग पढ़ते हैं. आपने इसे लिख लिया होगा. मैथ्स के बाद आपको determinants पढ़ना है. इसमें सबसे पहला डिटरमिनेंट है लेंथ ऑफ द लिस्ट. लेंथ ऑफ द लिस्ट. लिस्ट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी आपको उतना ही टाइम टेकन होगा लेंथ ऑफ द लिस्ट. और टाइम टेकन जितना ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, इफ़ द लिस्ट इज़ लॉन्ग इट रिक्वायर द टाइम, एंड जितना ही ज़्यादा टाइम होगा उतना ही अच्छा आपकी लर्निंग होगी, उतनी ही अच्छी आपकी लर्निंग होगी. लेंथ ऑफ द लिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच डिटरमाइन द वर्बल लर्निंग. देन सेकेंड इज द मीनिंग. अगर जो मटेरियल आप लर्न कर रहे हैं अगर उसकी मीनिंग है तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड. आप इसे बहुत ईजिली समझ सकते हैं अगर उसकी मीनिंग है. मीनिंगफुल ऑफ द मटेरियल. अगर मटेरियल और आइटम जो मीनिंगफुल है तो आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं. इट विल बी रिमेन इन योर मेमोरी सिस्टम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल द डिटर्मिनेंट्स, द 2 मेन डिटर्मिनेंट्स. देन इसी के रिगार्डिंग इट्स देयर वाज अ नेम ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट हुज नेम इज बाउस्फेल्ड. बाउस्फेल्ड ने कैटेगरी क्लस्टरिंग की बात करी है. कैटेगरी क्लस्टरिंग. इन्होंने कहा कि हम लोग हमारा जो माइंड है वो अक्सर चीज़ों को एक कैटेगरी में फॉर्म कर देता है. ठीक है. इट वॉज डन समथिंग ऑटोमेटिकली. ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जा सकता है कि कैटेगरी में हम लोग इसे क्लस्टर कर देते हैं. फाइन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैटेगरी क्लस्टरिंग. ओके. So verbal learning we have discussed. Now moving toward to the next method of learning. It is concept learning. वर्बल लर्निंग के बाद जो नेक्स्ट मेथड है जो आपको पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट लर्निंग. इट इज़ एन अनदर पैराडाइम ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट.
Here the word is theme concept. Firstly you have to define what is concept. आपको ये डिफाइन करना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। हम किसे कहेंगे इट इज़ अ कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अ कॉन्सेप्ट इज नोन एज विच हैव सम फीचर विच हैव सम रूल। सो कॉन्सेप्ट हम उसे कहते हैं जिसमें कोई फीचर्स होते हैं उसके और वो कुछ रूल से बाउंडेड होता है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। सो फीचर्स जैसे किसी भी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्कूल, स्कूल इज अ कॉन्सेप्ट। तो स्कूल के फीचर्स होते हैं, स्कूल में टीचर्स होंगे, स्कूल इज नोन फॉर द स्टूडेंट, स्कूल इज नोन फॉर द डिसिप्लिन, इट हैव सम रूल्स, ओके। सो कॉन्सेप्ट क्या होता है, विच हैव सम फीचर एंड विच हैव सम रूल। फीचर्स, नाउ concept is also categorized into two category, that is well defined concept, well defined, और सेकेंड होता है ill defined। एक होता है वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट, एक होता है इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को हम आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट बोलते हैं और इसे हम नेचुरल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वेल डिफाइंड को आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट बोलते हैं और इल डिफाइंड को नेचुरल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सो देयर वर टू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल और नेचुरल, वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड वो कंसेप्ट होता है जिसमें सारे फीचर्स वेल डिफाइंड हैं, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में है। इन्हें आर्टिफिशियल कंसेप्ट बोलते हैं क्योंकि इट वाज अ कंसेप्ट विच वाज मेड बाय द मैन, बट इल डिफाइंड आर दोज कंसेप्ट विच हैव मेड बाय नॉट बाय द ह्यूमन बीइंग, इट वाज समथिंग मेड बाय द नेचुरल थिंग एंड द गॉड, ओके, गॉड से रिलेटेड है। तो दैट वाज कम अंडर द नेचुरल कंसेप्ट विच इज नोन एज इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड आर दोज कंसेप्ट विच आर आर्टिफिशियल विच वाज मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेल डिफाइंड कंसेप्ट इज दैट इट हैव सम फीचर्स, इट हैव सम रूल, बट इल डिफाइंड कंसेप्ट के कोई फीचर्स नहीं होते, इट हैज नो फीचर, इट हैज नो रूल्स, ओके। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट लर्निंग, ओके। Now the next learning which we have to discuss is skill learning. Concept learning is a very small method of learning, okay. Concept means a categories which have some rule, which have some feature, okay. We learn about the verbal learning, we learn about the concept learning, now we are studying about the skill learning. Skill learning, here the word is given over here, skill. What is the meaning of skill? Skill means anything which you do smoothly and efficiently without not having lot of effort, so it is a skill. जिस भी चीज़ को आप बिना एफर्ट के और उसके करते हैं तो उसे हम स्किल कहते हैं, दैट इज नोन एज स्किल, ओके। जिसमें एफर्ट नहीं लग रहा है आपका और यू आर डूइंग इट वेरी स्मूथली, सो इट इज नोन एज स्किल, ओके। सो इट इज नोन एज स्किल, ओके, ओके। नाउ स्किल लर्निंग, सो स्किल में जो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने काम किया है उनका नाम है फिट्स। फिट्स ने कुछ फेजेस बताए हैं स्किल एक्विजिशन के। फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन, कुछ फेजेस बताए हैं स्किल एक्विजिशन के, जिसमें फर्स्ट है कॉग्निटिव, देन सेकेंड है एसोसिएटेड, एंड थर्ड है ऑटोनोमस। कॉग्निटिव, एसोसिएटेड एंड ऑटोनोमस।
3 phases ऑफ स्किल एक्विजिशन बताया गया है फिट्स ने कि स्किल को जब हम एक्वायर करते हैं तो वी गो थ्रू 3 स्टेजेस और 3 फेजेस। इन्हीं 3 स्टेजेस और फेजेस से जानते हैं हम लोग। फर्स्ट होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द कॉग्निशन, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द मेंटल प्रोसेस यानी गेनिंग द नॉलेज। हेयर वी गेन द नॉलेज, कॉग्निशन, कॉग्निटिव प्रोसेस। तो बेसिकली इट इज़ अ स्टेज ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज, गेनिंग द नॉलेज। Then second stage is associative. Associative means whatever the knowledge which we have stored already in our memory system earlier, उससे हम correlate करते हैं, associate करते हैं. And last stage is autonomous. Autonomous means the activity done automatically. It do not require any kind of like thing. Cognitive, associative and autonomous. Cognitive related to the gaining knowledge and associative means associating it with the previous thing, and autonomous means when the things will done automatically. इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है automaticity यानी things are going automatically, automatic होती हैं and with less effort. So skill यानी आप इनिशियली क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तो आप कॉग्निटिव स्टेज पे होते हैं यानी आप हाईली अलर्ट रहते हो सीखने में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप एसोसिएटिव हो करते हो यानी आप उससे अपने रिलेट करते हो। एंड व्हेन यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स विल बिकम ऑटोमेटिकली डन। सो दिस इज द स्किल लर्निंग। सो इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ लर्निंग, and it is the transfer of learning. It is the transfer of learning. So transfer of learning means it is another topic which is related to the learning, and here we have completed up to the skill learning, we have completed up to the like all the paradigms, we have discussed all the method like classical conditioning was discussed, operant conditioning discussed, then cognitive learning, observational learning, verbal learning, skill learning. Now we are studying the transfer of learning. लर्निंग में ट्रांसफ़र भी होता है। व्हेन यू हैव अ लर्निंग, जब आप लर्निंग करने जाते हैं देयर इज़ अ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कैसा होता है? 2 काइंड ऑफ मेनली ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट होता है जनरल और सेकेंड होता है स्पेसिफिक। सो लर्निंग जब भी होती है तो आप ट्रांसफरेंस होता है तो 2 ट्रांसफ़र होता है, जनरल और स्पेसिफिक। इट इज रिलेटेड जनरल यानी एक नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो सभी को होती है, बट देयर आर सम स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑल्सो। सो दिस स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट: पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, 3 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है: पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर? मीन्स आपने कुछ सीखा एंड आपने उसके बाद कुछ और सीखा, तो द प्रीवियस लर्निंग इज वेरी मच इन्हांसिंग योर न्यू लर्निंग, दैट इज अ पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर जस्ट अपोजिट, अगर आपने आपके प्रीवियसली लर्न मटेरियल विल डिटोरिएटिंग द परफॉर्मेंस और विल क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन लर्निंग द न्यू, दैट इज अ नेगेटिव ट्रांसफर। जीरो मीन्स नो इफेक्ट, देयर वाज अ नो इफेक्ट ऑफ द प्रायर लर्निंग विद द न्यू लर्निंग। प्रायर लर्निंग का न्यू लर्निंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो दैट इज अ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी और अच्छे से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ़ यू आर स्टडिंग एनी लैंग्वेज, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले इंग्लिश लैंग्वेज लर्न की, नाउ आप फ्रेंच लर्न कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ठीक है, बट आपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्न की, नाउ आप जो है
संस्कृत लर्न कर रहे हो जिसका कोई उतना कोरिलेशन नहीं, तो इसकी लर्निंग का नेगेटिव ट्रांसफर होगा, कोई आप नहीं लर्न कर पाओगे, हो सकता है ऐसा, ठीक है। और जीरो मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द प्रायर लर्निंग ऑन द न्यू लर्निंग। प्लीज नोट इट डाउन इफ इट इज डन, सो आई विल रब द बोर्ड। Okay, I'm rubbing the board. I hope you all have done it. So almost so many methods we have discussed over here, children. Now the next topic from this chapter which we have to discuss is factors influencing learning. कौन से factors हैं जो कि influence करते हैं learning को? Factors influencing learning. So there were two main factors which influence the learning. Sorry, three main factors which influence the learning. First is motivation. Second is perceptual set. Third is motivation, perceptual set. Motivation, perceptual set. एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग। ओके, नॉट एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं, परसेप्चुअल सेट हो गया, मोटिवेशन हो गया, रिइंफोर्समेंट है, रिइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस द लर्निंग। रिइंफोर्समेंट बेसिकली द पार्शियल रिइंफोर्समेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं लर्निंग को कि आपकी लर्निंग हो रही या नहीं हो रही। जैसे मोटिवेशन, आर यू मोटिवेटेड टू लर्न, आर यू रेडी टू लर्न, आप रेडी हो लर्न करने के लिए। सी, नोबडी विल मेक एनी पर्सन लर्न इफ दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड एंड दे आर नॉट रेडी टू लर्न समथिंग। सो नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन टीच यू, कैन मेक यू लर्न। सो यू हैव टू बी वेरी मच मोटिवेटेड टू लर्न एनीथिंग। सेकेंड इज परसेप्चुअल सेट। अगर किसी भी तरह का कोई मेंटल सेट है तो भी आपकी लर्निंग नहीं होगी। आपका अप्रोच जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर लर्निंग। रिइंफोर्समेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लर्निंग वेरी मच, वेरी लॉट, एंड वी हैव रेड इट इन डिटेल लाइक इन ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो कि व्हाट इज द रोल ऑफ द रिइंफोर्समेंट। Here we are discussing about partial. Yeah, partial reinforcement play a greater role in influencing the learning or in establishing the learning. When the reinforcement is partial, जब reinforcement जो होता है वो partial होता है तो इससे बहुत अच्छी learning होती है, ठीक है। partial means होता है कि continuous reinforcement नहीं देना, रुक रुक के देना, interval पे देना, intermittent पे देना, तो learning बहुत ही अच्छी होती है। Fine. Okay, so this is clear, reinforcement is clear, perceptual set. So factors influencing learning we have discussed. Okay, so in this video I have discussed with you children so many topics. Okay, I hope you all are understanding it, and still there are so many topics are left from this chapter, like learner style आपको पढ़ना है, देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, एंड देन सम एप्लीकेशंस ऑफ द लर्निंग प्रिंसिपल। लर्निंग प्रिंसिपल्स का कहाँ एप्लीकेशन है, तो दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ओके चिल्ड्रन, and I just hope you all will study properly. Okay, I must say you all thank you so much for carefully listening and observing to me. Keep preparing the notes, write down the things properly. It is very important for you all to keep on studying. Okay, so notes बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे. Okay बच्चों, thank you.
all the topics are clear. Whatever is left, we'll discuss in the next video. Thank you.